क्या आप लोगों को लगता था कि आप लोग इतने मार्क्स स्कोर कर लेंगे? एक मेंटर होना चाहिए जो आपको इंस्पायर करते रहे। वो था डिस्ट्रिक्ट टॉपर शेयर द फर्स्ट पोजीशन। मैंने तो सर के नोट्स पर ही रिलाई किया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो सीबीएसई ओरिएंटेड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। Hello everyone, today we have with us the CUET UG Topper 2025, Miss Kanishka Srivastava, Miss Ansi Yadav, Mr. Ayush Goswami, and two more students are there, those who scored 95 percentile in CUET examination, but they are not with us just now. And first of all, after listening their name, the name which came to my mind is Netaji Subhash Chandra Bose. He gave two famous quotes. You require a tremendous perseverance and tremendous willpower to succeed in your life. And the second quote is, the youth of the nation are the trustees for tomorrow. And literally, she and this Ayush and all of them has epitomized that. First of all, I would like to introduce all of you with Miss Kanishka Srivastava. She scored above 99 percentile in CUET UG examination, 99.79 percentile in mathematics, 99.54 percentile in physics, and 99.45 percentile in chemistry, near about to be precise. And Ansi Yadav scored 98 point something percentile in physics and chemistry and above 95 percentile in mathematics. Ayush also scored above 97 percentile in physics, 93 percentile in chemistry and 98.99 percentile in mathematics. So I welcome you all, and first of all I would like you all of you about your preparation strategy. Today we will try to decode how you just epitomize your journey and what are the challenges and hurdle you face throughout this journey. So first of all I would like to ask Kanishka Srivastava. पहला क्वेश्चन ये है आपसे, what was your strategy to be succeed in this CUET examination? Yes, sir. Thank you very much, sir, for your kind words. I would like to start with for CUET, I relied entirely on Nilesh sir. Regularly coaching classes होती थी, and I relied completely on his notes and all the material that he provided. Actually, he made it very easy for us because he used to select questions from different sources and different models and provide us with that, which saved a lot of our time. And I would say that he made our preparation judiciously, like managing time very well, and we use that time for revision, for question practicing, for mock test and all that. What was your strategy, Ansi? So it was pretty simple. I did all the things which I studied for boards. मतलब बोर्ड्स में जो था वो सबको CUET में था ही, और सिर्फ सिलेबस में थोड़ा बहुत ही एड ऑन था, फ्यू चैप्टर्स थे, तो मैंने स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लिए थे. उसके बाद फिर जब CUET का प्रिपरेशन हुआ तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि लाइक एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो कि आना ही आना है, उसको आपको प्रिपेयर करना है. मैथ में टाइम कम रहता है तो मतलब उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स रहते हैं काफ़ी क्वेश्चंस के लिए, तो उसको ध्यान में रखना है. और केमिस्ट्री तो बहुत ही मतलब टाइम कंस्ट्रेंट, उसमें कुछ प्रॉब्लम रहता नहीं है. उसके लिए बस यही है कि हर चीज़ को अच्छे से याद रखना है. एकदम ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स एक दो ही आते हैं, तो बस. आयुष, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, मतलब आपको पता था CUET एग्ज़ाम के बारे में, कैसे आपने स्टार्ट किया? जी सर, नीलेश सर और संदीप पाठक सर की CUET के माध्यम से हम बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में परस्यूट कर सकते हैं और आगे जाके JAM गेट का एग्ज़ाम देके और अच्छी मतलब मास्टर्स कर सकते हैं. और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई और मैंने इसमें अपीयर किया और अच्छे खासा स्कोर कर लिया था. तो कनिष्का जी से हम जानना चाहेंगे कि व्हाट वाज योर स्टडी प्लान फॉर अपीयरिंग इन CUET एग्जामिनेशन. डज यू टोटली रिलाई ऑन NCERT और यू हैड यूज्ड सम एडिशनल वैल्यू रिसोर्सेज, वैल्यू एडिशन वाज देयर, और व्हाटसएवर योर रिसोर्स यू जस्ट मेंशन देम, whether how you are just preparing for the CUET examination? Yes, okay, so for physics and chemistry, I relied on sir's note, whichever he provided, and whatever questions he gave us, he used to send pictures of which questions were important and what to study and what not to study. So for physics chemistry, I just did that, and for mathematics, most of our syllabus was already completed during our board examinations. So for CUET, we just needed more practice, and for mathematics, the paper level is not very tough. We just need time management
because we are given 60 minutes and in that we have to solve 50 questions and sometimes the question can be very lengthy also. So I practiced that. I did mock test. Sir suggested us an app for mock test and I gave that for mathematics. And yes, mathematics is all about practicing and time management. तो आंसी जी, you start preparation for CUT examination after the board examination? So after boards, I was having 2.5 months. So first 15 days I didn't do anything, and after that, the preparation of CUT is not something different from the boards. It's just you have to revise all the things of the boards, and the main thing is you have to practice for the time constraint, because as Kanishka said, the time is very limited, and you have to do a lot of questions in that. So you have to practice it very well so that you do not miss out something, and that's it. The time constraint is the main problem. Questions are not the problem. What was your experience on the day of CUT examination? Were there any challenge you faced during the time of the examination, especially in PCM section? And how did you handle that challenges? Yes, sir. Actually, not any challenge, but I had an advantage that CUT was conducted like in 2 days, 2 sessions. So mine first was GAT and mathematics, and the second one was physics, chemistry, and English. So I had this advantage, like for GAT, like it doesn't really matter for the courses which we are going to pursue. So my main focus was on maths and physics, chemistry only. So in the first my session, I focused entirely on mathematics, and yes, we do face a little challenge in mathematics because of very limited time. So for that, I practiced a lot of questions before that day. So I would say that it became my habit to solve questions faster. And for physics, chemistry, I did not face any real challenge, because if you're very well prepared for chemistry, then you can easily complete your exam in 30 or 45 minutes easily. And for physics, yes, the physics level was a little bit tough. So yeah, in that also I faced a little time management problem. Okay. Were there any specific type question like होता नहीं है assertion reasoning, theoretical, numerical portion फिजिक्स में, जो आपको वहाँ पर रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको मुश्किल आई हो? कुछ आपका एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहेंगे? Yes, sir. Sir, in chemistry, when I used to do the mocks, so the chemistry paper was very different from the real paper, because in the mocks, the number of numericals was much greater than in the exam. But in the exam, there were only few numericals, like 2 or 3 numericals. So you have to rely entirely on the theory. If you do the theory very well, then you can score very good marks. While in the maths, there are only the questions, means मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, कि जैसा कि मैंने बोला कि जो आपको करने ही करने हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं. और एंड इन द फिज़िक्स थ्योरी जो है वो थोड़ी सी डायरेक्ट नहीं थी, मतलब थोड़ा घुमा फिरा कर पूछ रखा था, तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए. एंड इन द थ्योरी फॉर द न्यूमेरिकल्स पार्ट, द न्यूमेरिकल्स वर डायरेक्ट, बट द पोर्शन ऑफ द सर्किट डायग्राम क्वेश्चंस वर अ लिटिल बिट मोर इन माय शिफ्ट. आयुष जी, आपसे जानना चाहेंगे आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस एग्ज़ाम वाले दिन और CUT में क्वेश्चन को सॉल्व करने में? आंसी के बारे में मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि कनिष्का का एक बार मैथमेटिक्स का पेपर हुआ 14 मई को, अगर हम करेक्ट है, 22 मई, और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में 2 जून को इनका फिजिक्स केमिस्ट्री का हुआ. लेकिन आंसी का एक ही दिन में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जो कि एक मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके का प्रेशर बिल्डअप करता है. तो आंसी जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस प्रेशर को कैसे टैकल किया? मतलब एक ही दिन में सारे एग्ज़ाम होना था, कैसे मतलब उस चीज़ को लेकर कहीं नर्वस थी क्या आप? हाँ सर, एक्चुअली थोड़ा डर तो था, क्योंकि मतलब 3 घंटे लगातार बैठे रहना, आपको सिंगल भी ब्रेक नहीं मिल रहा है, तो डिफ़िकल्टी तो रहती है. और फिर पहला मेरा केमिस्ट्री था, तो केमिस्ट्री वॉज ईजी, तो मैं खुश थी. उसके बाद फिर मैथ्स में क्या हुआ, मेरा थोड़ा सा बिगड़ गया, तो उसकी वजह से पैनिक की वजह से फिज़िक्स भी मैंने थोड़ा बिगाड़ दिया. तो आपको वो नहीं करना है, मतलब पैनिक नहीं होना है, एकदम ही बिल्कुल काम रह के करना है. अगर कोई पेपर बिगड़ भी गया तो वो बाद में नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन हर पेपर को एकदम ही उसके टाइम के बीच में ही करना है और बिल्कुल काम होके करना है. कहीं भी पैनिक करोगे तो फिर दूसरा पेपर भी बिगड़ जाएगा. आयुष, आपको कैसा लगा था एग्जामिनेशन के पहले और एग्जामिनेशन के बाद? कहीं पे कोई ऐसा चैलेंज जो आपने फेस किया हो और आपको कहीं कोई ऐसा डर, क्या आप नर्वस थे? जी सर, क्वाइट नर्वस थे. फिजिक्स केमिस्ट्री में तो इतना नहीं थे, लेकिन मैथ में थोड़ा डर लग रहा था, और वो मैथ थोड़ी लेंदी आ गई थी.
इन 3D सेक्शन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो 30 से 40 क्वेश्चन अप्रॉक्स कर पाए तो उसमें उस वजह से। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मतलब ये तीनों स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम में भी मतलब हमारे यहाँ पढ़ाई की इन्होंने, और दे आर एक्सेप्शनली वेरी वेल। शी स्कोर 99 in physics in board examination ISC board. Both are district topper. Shared the first position in ISC board 2025 result. Ayush also scored very well marks in physics 98, computer 100, mathematics 93. Kanishka and Ansi both scored 99 in physics. और ये ऐसे बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम के पहले हम नर्वस हो जाते कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं थोड़ा सा भी डर हो जाए, इधर उधर ना हो जाए। और हमें पता है ये हमें हमेशा प्राउड फील कराएंगे, लेकिन जो थोड़ा बहुत एक टीचर का हो ना, अपने लिए तो नहीं होता, लेकिन जब लगता है कि कहीं ऐसा ना हो। और हर बार जब भी एग्ज़ाम देने के पहले गए, इन लोगों को स्पेशली हमने उसको बहुत मैनेज करके बात करना, ऑल द बेस्ट बोलना, और एग्जामिनेशन के बाद इतना मतलब ऐसा लगता है कि जल्दी से बच्चों से बात हो जाए और ये बोलते हैं कि सर शानदार रहा पेपर। और कनिष्का ने मतलब कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया, ना आंसी ने मुझे डिसअपॉइंट किया। आयुष थोड़ा सा वहाँ पे था कि सर 38 क्वेश्चन कर पाए फिजिक्स में, लेकिन हमने कहा आप 38 करके आए हैं, इसका मतलब आपका 35 क्वेश्चन सही होगा, और जितना आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, अगर आपका पेपर या शिफ्ट अगर टफ आएगा तो ऑफकोर्स सी बात है पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा। कनिष्का थोड़ा सा आप और क्लियर कीजिए कि क्या आपने मतलब आपके जो सोर्स था, क्या आपने कोई ऑनलाइन हेल्प ली थी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, या आपने टोटली रिलाई किया, मतलब कैसे मतलब किया, और आपके जो मतलब जो उसमें क्वेश्चन थी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट की? क्योंकि जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि आप फर्स्ट टाइम मतलब जो CUT का एग्ज़ाम और बोर्ड दोनों को बैलेंस करके 99.8 परसेंटाइल स्कोर करना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो आपने इसको कैसे फेस किया और कैसे चीज़ें आसान हुई, या अगर कठिन थी तो कैसे आपने उनको झेला? एक्चुअली हम लोग का ये एडवांटेज था इस साल कि ड्यूरिंग अ बोथ प्रिपरेशन ओनली सर ने काफ़ी एक्स्ट्रा कुछ हम लोग को करा दिया था, जिसकी वजह से हम लोग का CUT में काफ़ी टाइम मतलब बच गया। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हम लोग की कंप्लीटेड थी ड्यूरिंग अ बोथ्स ओनली, तो थोड़ा बहुत फिजिक्स में काम करना पड़ा, और सर ने बस बोर्ड्स के कुछ दिन बाद ही बैच स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले हम लोगों ने बचे हुए टॉपिक्स कवर किए थे बहुत ही जल्दी, और उसके बाद बस हम लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। सर ने हम लोग को टेक्स्ट बुक सजेस्ट किया था, उस पर सर ने बोला था कि टाइम टू टाइम मॉक्स दो। इनिशियली हम लोग का भी स्कोर कम आता था, बट धीरे धीरे वो बढ़ता गया और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। एज सच कोई पर्टिकुलर मॉडल नहीं यूज़ किया, सर ही हम लोग को क्वेश्चन दे देते थे मतलब सिलेक्ट कर करके कि क्या काम का है और क्या काम का नहीं है, तो बस वही किया। एंड फॉर NCERT I did not really exactly rely on it. I read it once, but only for chemistry, not for physics. आंशी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि CUT एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे बच्चे जो कोटा से रिटर्न आते हैं, या वो मतलब एक बैकअप प्लान के लिए CUT UG का फॉर्म भर देते हैं, तो आप जो प्रिपरेशन कर रही थी CUT में, आपको क्या मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम आई कभी? कैसे आपने कौन से सोर्स का यूज़ किया? जैसे कनिष्का जी ने बताया, आपने कैसे उसको चैलेंजेस को फेस किया, या चीज़ें अगर आसान थी तो कितनी आसान थी और कठिन थी तो कितनी कठिन थी? सर मेरी ये प्रिपरेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो रही नहीं, क्योंकि सर ने हम लोग को CUT से लेवल से ज़्यादा ही जो है प्रिपेयर करा दिया था। क्योंकि हम लोग के कोचिंग में जो है नीट के बच्चे भी आते थे, कुछ JEE मेंस के भी थे, तो वो अपने DPPs में से क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहते थे। सर ने हम लोग को वो सब पहले ही करा रखा था प्रैक्टिस, तो जब हम लोग वो क्वेश्चन कर लेते थे तो फिर बहुत कॉन्फिडेंस भी आ जाता था कि हाँ ये हम कर सकते हैं। तो फिर ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था कि हाँ कोई भी बच्चा बैठे तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो वो एक कॉन्फिडेंस जो है सर ने बिल्ड कर रखा था। आयुष, आपका क्या ओपिनियन है इसको लेकर के? मेरे टीचर ने मुझे बहुत सारे नीट और JEE के PYQ करवा चुके थे, इस वजह से मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं CUT में अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। चलिए, ये तो बहुत शानदार बात है आप लोगों ने बताया। अब कनिष्का जी से हम ये जानना चाहेंगे कि फ्यूचर एस्पिरेंट जिनको CUT के लिए प्रिपेयर करना है, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए? कई बार बच्चे ऑनलाइन पे रिलाई करते हैं, ऑनलाइन कोर्स की तरफ जाते हैं, तो आपका एक ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है? कैसे वो CUT में आपके बराबर, तो देखिए आपने तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल कर दिया, अगर कोई बच्चा 750 में PCM में 500 मार्क्स भी स्कोर कर रहा है तो एक्सेप्शनली वेल है। कनिष्का जी के 601 मार्क्स हैं आउट ऑफ 750, तो कैसे क्या आपने कैसे इसको अचीव किया और फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? यस सर, पहली चीज़ तो यही कि जस्ट बोर्ड्स कंप्लीट हुए होते हैं और उसके तुरंत बाद CUT के लिए प्रिपेयर करना होता है।
तो किसी का भी मन नहीं लगता है पढ़ने में, स्टूडेंट्स गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली, तो वो नहीं करना है। कुछ 1-1.5 महीने की और बात होती है, बस उतना पढ़ के बस क्लियर करके फिर यू आर कम्प्लीटली फ्री टू डू एनीथिंग एल्स। तो पहली चीज़ तो यही कि 3-4 दिन के ब्रेक के बाद सर ने भी हम लोग से यही कहा कि रेस्ट लो थोड़ा, 3-4 दिन का लो, फिर उसके बाद लग जाओ फिर से प्रिपरेशन में। तो वही ऑल्सो आई वुड से कि 12th के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रखो, जिससे कि बाद में मतलब उतना लोड नहीं पड़ेगा CUET का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द CUET सिलेबस इज़ 12th बेस्ड ओनली। तो very little topics are extra which you have to cover and they are very little, you can easily complete them in 15-20 days। तो 12th के साथ अच्छे से करते चलो, और उसके बाद बस जो भी ऑफलाइन कोचिंग अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बस वही मैंने तो सर के नोट्स पर ही रिलाई किया, तो बस वही। एंड मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, उससे बहुत अच्छा इवैल्यूएशन होता है आपकी प्रिपरेशन का प्लस टाइम मैनेजमेंट का। कितने मॉक टेस्ट दिए थे आपने CUET के लिए? लगभग नियर अबाउट कितने मॉक टेस्ट? अप्रॉक्स 15 मॉक टेस्ट प्लस PYQs ऑल्सो, तो अप्रॉक्स 15 सर। आंसी जी से हम जानना चाहेंगे कि रोल ऑफ द टीचर, मेंटोर, इसमें आप उनकी क्या भूमिका रहती है CUET एग्जामिनेशन के लिए? क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सफलता एकात्म सफलता नहीं होती, पेरेंट्स का भी योगदान होता है, टीचर्स का भी होता है। तो एक टीचर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? अगर ऑनलाइन आपने कोर्स लिया है तो उस हिसाब से, या ऑफलाइन लिया है तो उस हिसाब से, टीचर या मेंटोर का क्या मतलब भूमिका रहती है इस एग्ज़ाम को क्रैक कराने में? यस सर, टीचर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ना बच्चे जो हैं वो कुछ टाइम बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको इंस्पायर करता रहे कि नहीं तुम कर सकते हो। तो इस तरह से सर ने हम लोग को हमेशा जो है मोटिवेट किया है। कभी अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी बना तो ये नहीं कि ये क्यों नहीं बना, बल्कि बोला कि नहीं तुम लोग कर सकते हो, थोड़ी बहुत गलतियाँ सबसे हो जाती हैं। तो टीचर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और साथ में पेरेंट्स भी आपके प्ले करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। तो हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आयुष, आपका क्या कहना है इस बारे में? जैसा कि बताया, टीचर बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं और फैमिलियर माहौल रहता है, जिस वजह से वो मोटिवेट करते हैं और आगे जाके दिक्कत नहीं होती है। तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं इन सारे बच्चों की फैमिलीज से भी बहुत अच्छे से अवेयर हूँ, और मैं नमन करना चाहता हूँ इन सारे बच्चों के पेरेंट्स को, जिन्होंने इतने शानदार बच्चे जिनके हैं इतने अच्छे संस्कार दिया, और इन्होंने मतलब कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि बच्चे अपने बच्चे नहीं हैं। इन बच्चों के साथ आपकी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो गई कि कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, इन बच्चों को पूरा एक्सेस है, आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ये क्वेश्चन ऐसा हो गया। कई बार ऐसा हुआ CUET के स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट में बच्चों के मार्क्स कमाए 2 और स्टूडेंट, रुद्र प्रताप सिंह परमार और प्रशांत आचार्य हमारे बीच नहीं, दोनों का स्कोर भी बहुत अच्छा है। तो उनको ये हुआ कि सर हमारे तो 250 में से नियरली 100 मार्क्स आए, फिजिक्स में 90 मार्क्स आए। तो उनको बार बार बताया गया कि देखो बेटा, स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आप मेंटेन रखिए और धीरे धीरे आपको मार्क्स बढ़ता जाएगा, और आपकी क्या कमी है वो हम लोग तुरंत बता देते हैं, और जितना जल्दी यू विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द रियलिटी, आप बहुत प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और जब आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लेंगे, तभी आप उसको सुधार कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ तो है कि आपका टारगेट अचीव होना चाहिए, आपके स्लीपिंग आवर्स फिक्स होने चाहिए, और आप किसी भी कीमत पे जो आपके डेली आपने जो गोल बनाए हैं कि हम इसको अचीव करना है, उसको तो आपको करना ही पड़ेगा। किसी भी कीमत को आप आप बैकलॉग्स नहीं लगने दे सकते हैं। तो कनिष्का से हम क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहेंगे CUET के बारे में। और एक और सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कनिष्का ने ISC बोर्ड में और आंसी ने 99 मार्क्स, इनका 98 मार्क्स आया, तो मतलब जो एक ओपिनियन है, कई बार लोग कंपेयर करने लगते हैं CBSE बोर्ड और ISC बोर्ड को। लोग कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा है कि इवन द स्टूडेंट्स आर स्विचिंग इन क्लास 11 फॉर CBSE बोर्ड, दे जस्ट मतलब जब उनसे बात करो पेरेंट्स से, तो दे जस्ट से कि सर वो CBSE बोर्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट होता है, और वहाँ पे NCERT के सिलेबस से क्वेश्चन आता है, तो मतलब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रहती है। तो कई बार ऐसा होता है, ये सारे बच्चे ISC बोर्ड के हैं, और CUET का एग्ज़ाम CBSE ही कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और 99.9 परसेंटाइल मार्क्स इनका है, 98 परसेंटाइल इनका है, 97 परसेंटाइल इनका है। तो इस बारे में कनिष्का, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि आपको भी कई बार सुनने को मिला होगा कि अगर CBSE बोर्ड का वो एग्ज़ाम होता है, ISC में तो ईजी आया पेपर, CBSE में पेपर ज़्यादा टफ आया। भाई हम लोग को तो पता है CBSE में नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, लेकिन एज ए बच्चों को तो पता नहीं रहता, पेरेंट्स। तो लोगों को आप क्या समझाना चाहती है CBSE ISC बोर्ड के बारे में? ये तो मतलब इट इज़ टोटली अ मिथ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो CBSE ओरिएंटेड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव
like studied in ICSE till 12th, completely ICSE, and still I found it very easy to compare CUET syllabus with my board syllabus. मतलब सब almost हम लोग का similar ही था syllabus. एक दो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे तो वो CBSE वालों को भी कवर करने पड़ते, उनके में भी नहीं थे, वो ऑलमोस्ट उनके से भी रिड्यूस थे, हमारे से भी रिड्यूस थे, साथ में CBSE के बच्चे भी थे, तो कंपैरिजन भी हो रहा था, कंपेयर होता था। तो ऐसा तो मिथ है बिल्कुल कि CBSE ओरिएंटेड है। और बात रही NCERT की, तो आई हैव रेड NCERT फॉर केमिस्ट्री वंस एंड एवरीथिंग आई फाउंड इट इन सर्स नोट्स ऑल्सो, तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं पड़ी। मैथमेटिक्स में मतलब पाठक सर ने जितना आपको पढ़ा दिया था CUET के सिलेबस के लिए वो सफिशिएंट था कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा थोड़ा सा? सब मोर देन सफिशेंट था, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं उससे भी बोर्ड के लेवल से भी कुछ ईजी थे, बहुत ही मतलब क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा लेवल नहीं था उनका। बट वन एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव टू माय जूनियर्स दैट डोंट यूज़ कैलकुलेटर, बिकॉज ISC बोर्ड में जो है कैलकुलेटर अलाउड है, तो हम लोग शुरू से जो है उसी की प्रैक्टिस में आ जाते हैं कि कोई भी ईजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं, बट CUET में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा, तो फिर वहाँ पर जो है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। ISC का जो एग्ज़ाम पैटर्न और CUET में, तो क्या ISC का अप्रोच, जैसे हमने देखा केमिस्ट्री में जितने भी बच्चे हैं, श्रेया शर्मा का भी 98 परसेंटाइल है, आपका भी 98 है, सबका परसेंटाइल है, तो लोग कहते हैं CBSE की NCERT, तो क्या आपने क्या CBSE की NCERT की एक्सरसाइज सॉल्व की थी? नो सर, बस मैंने एक बार जो है केमिस्ट्री की उसको पढ़ा था बुक को, और जैसे कि कनिष्का ने कहा सब कुछ जो है नोट्स में से ही था। बस एक चीज़ ये डिफरेंट हो जाती है कि एग्ज़ाम का पैटर्न, क्योंकि जो ISC बोर्ड्स और जो CBSE बोर्ड्स हैं वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, और जो CUET रहता है वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स रहता है, तो बस आपको उस डायरेक्शन में अप्रोच करनी है कि आप ऑब्जेक्टिव को जो है एक टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर सॉल्व कर लें। आयुष, आपको कहीं पे ऐसा लगा कि आप ISC बोर्ड से थे या CBSE बोर्ड से थे, या CBSE बोर्ड या ISC बोर्ड, तो शहर में जैसे बच्चा CBSE बोर्ड की तरफ भागता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको क्या लगता है, क्या एडमिशन लेने के लिए 11th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने के लिए CBSE बोर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, या फिर जिस बोर्ड में ज़्यादा बेहतर टीचर हैं, आप जिस शहर में रह रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आपका क्या टेक है इस बात को लेकर के? मेरी यही राय है कि जिस बोर्ड, जैसे कि बताया कि ISC में ISC बोर्ड से पढ़ा हूँ कि वो ही बेस्ट है, और CBSE ज़रूरी नहीं है कि CBSE मतलब CBSE बोर्ड भी अच्छा है, लेकिन अगर अपन लोग जहाँ पर हैं, हम लोग को उस शहर में ये चेक करना है कि मतलब जैसे स्कूल में जाना अच्छा टीचर है वही बेस्ट होगा। और तो क्लोजिंग रिमार्क्स कनिष्का आप दीजिए कि बोर्ड का हर चीज़ का, स्ट्रैटेजी का, प्रेशर का, सारी बातें यहाँ हो गई। आपका CUET के एग्ज़ाम के बाद क्या आप लोगों को लगता था कि आप लोग इतने मार्क्स स्कोर कर लेंगे? कनिष्का? उतना नहीं सर, 500 अप्रॉक्स आई एक्सपेक्टेड, बट 600 500 प्लस और 500, हाँ 500 प्लस, अप्रॉक्स 550 आई एक्सपेक्टेड, बट 600 तो नहीं किया था। कनिष्का ने नहीं किया था, लेकिन हमने किया था, हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके थे कई जगह पे, क्योंकि हमें इन लोगों के पोटेंशियल पे पूरा भरोसा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों को देखा है तो इन लोगों के कंपैरिजन एक मन में एज ए टीचर हम लोग कर लेते हैं। आपको लगता था कि आप इतना कर लेंगे? हाँ सर, इतना तो लगता ही था, इससे थोड़ा और ज़्यादा भी लगता था, लेकिन जो मेरा एक ही दिन तीनों एग्ज़ाम्स हो गए। चलिए, तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ हम लोग अपने इस इंटरव्यू को मतलब एंड करते हैं, और मैं इन सारे बच्चों को फ्यूचर एंडीवर के लिए बहुत बहुत मतलब ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूँ, मतलब आप कैरियर में अपने आप को आगे कहाँ देखना चाहते हैं? और इन सभी के बिहाफ पे मैं कनिष्का से पूछ लेता हूँ कि आपका फ्यूचर गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि देखिए 601 मार्क्स है, मैं लोगों को कंफर्म कर देना चाहता हूँ, BSc में साइंस स्ट्रीम जो कि इनको लेना है, उसमें इंडिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे एडमिशन ना हो। DU का कोई कॉलेज नहीं है, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, वो तो ये देखिए सिक्योर हो गया। लेकिन हम कनिष्का जी से जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में आपका क्या प्लान है, देखिए मतलब क्या करना चाहते हैं? अभी तो आई एम गोइंग टू परस्यू BSc मैथमेटिक्स, एंड आफ्टर दैट आई विल प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। Will you also appear for this IIT JAM examination? Yes sir, if I have a change of mind then definitely I will. Okay. मतलब you have a clear cut clarity what you are going to pursue in the future. Okay. Ansi? Same as Kanishka, I am also going to pursue BSc Mathematics or Statistics, and after that I can appear for IIT JAM or I can either go in civil services. Okay. ठीक है। आयुष, आपका भी सेम टिक है? जी सर। ठीक है, इसी बातों के साथ हम इन सारे बच्चों के साथ मतलब अपने इस कन्वर्सेशन का एंड करते हैं, और मैं इन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं,
और इन लोगों के मतलब उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडीवर। और हम लोग इसको एंड करते हैं।